Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur. I welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to start unit number 1, that is Fundamentals of Data Communication and Network Topology, and we will cover today 1.1 topic, that is what is data communication, what are the components of data communication and characteristics of data communication. The learning outcomes are, after watching this video you will be able to define the term data communication, list various characteristics of data communication, list components of data communication, and you will be able to draw diagram of data communication. Course outcome that will get achieved is CO1, that is you will be able to maintain wired computer network topology after completion of this unit. Then program outcome, that is PO1 will get satisfied, means there will be improvement in your basic as well as electronics engineering specific knowledge. Then PO4 will get satisfied, you will be able to use various engineering tools like hardware and software, you will perform various experiments and you will be test the performance of network. Then PO6, you will be able to work on small projects in a team or personally. Then PO7, that is lifelong learning. Whatever concept you are learning here, so this knowledge is going to be with you for lifetime. The prerequisite to this topic is you should have basic computer literacy. Now let us see what is data communication. Data communication is defined as the exchange of data between two devices via some form of transmission media such as cable, wire, or it can be air or vacuum also. Means डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन और जो हमारे पास डेटा है उसको एक्सचेंज करना, लेकिन वो एक्सचेंज बिटवीन टू डिवाइसेस और नंबर ऑफ डिवाइसेस होगा, तभी हम उसको डेटा कम्युनिकेशन बोल सकते हैं. सो डेटा कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? अगर हम हमारे डिवाइसेस एक तो वायर से कनेक्ट करते हैं या फिर वायरलेस मीडिया से कनेक्ट करते हैं तो ही हमारा डेटा कम्युनिकेशन हो पाएगा. सो डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए हमारे पास दो मीडियम्स अवेलेबल है. बाय यूजिंग वायर्स वी कैन से इट इज वायर्ड मीडियम एंड वायरलेस मीडियम थ्रू एयर और थ्रू वाईफाई. सो दिस इज डेटा कम्युनिकेशन. और फॉर occurrence of data communication, communicating devices must be a part of data communication system made up of combination of hardware और software devices and program. तो डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए हमारे पास डिवाइसेस तो रहने वाले हैं, मीन्स हार्डवेयर लगने वाला है और उसके साथ साथ हमको सॉफ्टवेयर भी लगने वाला है. सो डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए we should have the combination of software and hardware also. Then let us take an example. अगर दो persons यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो किस तरह से होगा? Suppose this is person 1 and this is person 2. They are sending the message, means they are communicating. Suppose means they are talking to each other. Talking each other means they are sending the message to each other. So पहले person 1 उसको कोडिफाइड लैंग्वेज में उसको बोलेगा, देन person 2 है उस लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए एबल होना चाहिए. मीन्स सपोज ये इंग्लिश में टॉक कर रहा है person 1, सो person 2 शुड नो द इंग्लिश. इसीलिए देयर विल बी अ exact communication between person 1 and person 2.
So this is a simple example of data communication. Then we'll see characteristics of data communication. अब इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है. दैट इज डिलीवरी, एक्यूरेसी, timeliness and jitter. So let us see one by one. What is delivery? We should deliver the data or transfer the data from sender to receiver. हम डेटा की डिलीवरी कहाँ से कहाँ करेंगे? फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. और हमको ये एंश्योर करना है कि जो हमारा सेंडर है या डेस्टिनेशन है उसको ही हमारा एग्जैक्ट डेटा मिलना चाहिए. तभी हम बोलेंगे कि इट इज द एंश्योर्ड डिलीवरी. सेकेंड इज एक्यूरेसी. The data communication system must deliver data to the receiver without being altered or damaged. The receiver should receive the exact same data which was sent by the sender. हम बोलेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन हमारा एक्यूरेट हुआ है. कब बोलेंगे? कि जब सेंडर ने जो डेटा भेजा था वो बिना मॉडिफिकेशन के, बिना डैमेज हुए एज इट इज अगर रिसीवर को मिलता है, तब हम बोलेंगे कि हमारी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी एक्यूरेट. देन टाइमलीनेस. द सिस्टम मस्ट मेंटेन टाइमलीनेस. इट मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर. Delayed delivery can make the data useless to the receiver. इसका मतलब timeliness means there will be a factor of time. कितने टाइम में हमारा डेटा सेंडर टू रिसीवर मिलने वाला है, डिलीवरी होने वाली है. अगर बहुत डिले हो रहा है रिसीवर को हमारा डेटा पहुंचने के लिए या मिलने के लिए, देन इट इज यूजलेस. सो विद इन बाउंडेड टाइम पीरियड हमारा डेटा सेंडर टू रिसीवर डिलीवर होना चाहिए. तब हम बोलेंगे कि हमारी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी एक्यूरेट एंड इट इज टाइमली. देन जिटर. Jitter refers to the variation of packet arrival time. Data is sent as packets, that is a chunk of the whole data is sent in each turn. These packets get rejoined back in the target device to represent the complete data as it is. अगर सेंडर डेटा भेज रहा है और वो डेटा बहुत बड़ा है, वो डेटा पैकेट बहुत बड़ा है, तो हमको उस डेटा पैकेट को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना है और वो चंक्स बिल्कुल सिक्वेंशियल मैनर में पहुंचना जरूरी है रिसीवर तक. अगर वो छोटे छोटे चंक्स जो हैं अगर वन बाय वन सिक्वेंशियली नहीं पहुंच पाते हैं, सपोज हमने 5 चंक्स बना लिए हैं एक मैसेज के 1 2 3 4 5, लेकिन चंक 2 पहले पहुंच रहा है, चंक 4 बाद में पहुंच रहा है और उसके बाद चंक 1 पहुंच रहा है और बाकी के चंक्स पहुंच रहे हैं डेटा के. सो एट द रिसीवर एंड दैट चंक्स मस्ट बी रीअसेंबल्ड. मीन्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में उनको रिसीवर के साइड में रीजॉइन होना जरूरी है, तभी वो हमारा कंप्लीट डेटा पैक तैयार होगा और मैसेज तैयार होगा और वो मैसेज हमको रिसीवर तक मिलना चाहिए. सो दिस इज द जिटर. तो अगर हमने जैसा के जैसा डेटा पैकेट सेंड किया वैसा ही मिल रहा है रिसीवर को, सो इसका मतलब हमारा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव. देन these are the components of data communication. So this is the diagram showing the various components of data communication. First is message. तो दो कम्युनिकेशन के लिए हम मैसेज सेंड करने वाले हैं. सो दिस इज द मैसेज. सेंडर मीन्स दिस इज सिस्टम 1. रिसीवर मीन्स दिस इज रिसीवर सिस्टम 2. देन ट्रांसमिशन मीडियम. इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए हमको एक तो वायरलेस और वायर्ड मीडियम यूज करना है. वी कैन से इट इज अ ट्रांसमिशन मीडियम. सपोज हम यहाँ पे केबल यूज कर रहे हैं. सो दिस ग्रीन colored is a cable. Then there will be a set of rules. अगर इन दोनों के बीच में सेम सेट ऑफ रूल्स है और एक दूसरे को वो जस्टिफाई करते हैं, then there will be the data communication. Otherwise these two devices will not perform data communication or will not communicate to each other. Then
सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। मीन्स जैसे कि मैंने इसके पहले एग्जाम्पल दिया था, अगर ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, इस पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, इसने इंग्लिश में मैसेज भेजा है, तो पर्सन शुड बी एबल टू डिकोड दिस मैसेज और अंडरस्टैंड दैट मैसेज। सो इन दोनों के रूल्स प्रोटोकॉल्स मैच हो रहे हैं, सो देयर इज इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन। सो दिस 5 आर द components of data communication. So now let us see one by one. Message is a piece of information that could be in any form. हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, it is nothing but information. ये इंफॉर्मेशन एक तो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, या फिर वीडियो फाइल भी हो सकती है। अब सेंडर कौन है? सेंडर इज अ सिंपल डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज। अब ये डिवाइस कौन सा हो सकता है? इट कैन बी अ कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप और वीडियो कैमरा और अ कंप्लीट वर्कस्टेशन, ये कोई भी हो सकता है। देन रिसीवर is a destination where finally message sent has arrived. It is a device that received message same as sender. Receiver can also be in the form of computer, telephone, mobile or workstation. So जो sender हो सकता है वही रिसीवर भी हो सकता है, वही डिवाइसेस रिसीवर के लिए हो सकते हैं। देन ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? इट इज अ फिजिकल पाथ बाय विच डेटा और मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब जहां से हमारा डेटा ट्रैवल होने वाला है उस फिजिकल पाथ को हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। सो इट कुड बी वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड मीन्स एक तो हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर सकते हैं, और अगर ये वायरलेस है तो हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट ये भी यूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज प्रोटोकॉल? सो प्रोटोकॉल is nothing but set of rules had been already designed by the designers of the communication system, which represent a kind of agreement between communicating devices. So set of rules are nothing but protocols, means there should be agreement between two devices for proper data communication, और ये protocols match होना जरूरी है। Suppose there are different devices, those are connected to each other, और उन दोनों के बीच में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी प्रोटोकॉल मैच नहीं हो रहा है, मीन्स देयर कैन नॉट बी अ प्रॉपर डेटा कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा कम्युनिकेशन। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। सो टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, what are the various characteristics of data communication, what is the diagram of data communication, and what are the components of data communication. So dear student, you might have understood all these topics, and if you have any doubts or queries, then you are free to reach out on the following email ID. Thank you for listening. Thank you so much.